सब लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ते हुए देख रहे थे, तो उन्हें लगा कि जब ये बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो हम भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। 2022 में जो बैच MBA से पास आउट किया था, दे हैड द हाईएस्ट सैलरी। सो द बैच दैट स्टडीड फुल्ली ऑनलाइन had the highest salary in the history of MBA education. But that shows that online education has a strong power. जो प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, they are much better and therefore they receive much better salary. तो मैंने बोला देखो प्लान ए है कि अपग्रेड will be a $1 billion company, which was earlier the new thing कि यूनिकॉर्न आ गए थे. मैंने बोला अगर $1 billion नहीं होगी तो $900 million की होगी. Education should be seen more as a mutual fund product than as an insurance product. But अगर आप आउटकम नहीं देते हो तो लोग उसे इंश्योरेंस देखते हैं, अगर आप आउटकम देते हो तब लोग उसे म्यूचुअल फंड देखते हैं। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं आज अपग्रेड के को-फाउंडर मिस्टर मयंक कुमार। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी अचार। वो एक कहावत है ना कि कुछ ऐसे डेकेड्स होते हैं जिसमें कुछ नहीं होता एंड देन देयर आर डेज वेयर डेकेड्स हैपन। आई थिंक फॉर द एडटेक इंडस्ट्री इन आवर कंट्री दिस कोट एक्चुअली फिट्स वेरी वेल। Do you have anything to say about that? No, I think last 10 सालों में actually education sector, edtech sector में अगर आप देखोगे, there's been a lot of changes and a lot of innovation. जब हमने शुरू किया 10 साल पहले, तब online education नाम की कोई चीज़ थी नहीं. Right. There was hardly any conversation about people can learn online and people can study online. And I think 2016-17 around that time, the startup ecosystem went through a downturn. So funding भी नहीं थी, nothing was happening. And then like a one inflection point so to say came in during COVID. Right. So when COVID came in, the pandemic के time पे सब लोग घर पे थे, सब लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ते हुए देख रहे थे, तो उन्हें लगा कि जब ये बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो हम भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं. Right. So I think both the kids segment, which is the school segment, as well as the professional segment, started looking at online education a lot more seriously. I think kids के लिए तो इसलिए because उनके पास कुछ option था नहीं. For professional because now instead of travel they were at home, so they had extra time and amongst many things to spend, education is the least guilty spend. Right. So a lot of people took up education, online education very seriously. In fact मैं जोकिंगली ये भी बोलता हूँ कि 2022 में जो बैच MBA से पास आउट किया था, they had the highest salary. So the batch that studied fully online had the highest salary in the history of MBA education. But that shows that online education has a strong power. I completely agree, Mayank. You know, pandemic has actually been a game changer, especially for the edtech sector in our country. You know, people before the pandemic used to say कि laptop से बच्चे कहाँ पढ़ेंगे. You know, that seriousness word that you mentioned, वो उस समय नहीं हुआ करता था. But online education को लोगों ने seriously pandemic से ही लेना शुरू किया. And not just young kids, young children, people like us as well, right? The moment pandemic went away, आपके लिए कोई alternative offline institute तो नहीं खुला है, because आप तो offline जा नहीं रहे थे पहले भी, आप पहले भी online कर रहे थे, अभी भी online कर रहे हो. So जो drop जो आपने कहा था post pandemic has been a lot more severe in the school education segment versus the working adult or professional education segment. Because we never had any other option. Like if I'm working, so I have to learn whatever I have to learn online only. There's no plan B for me, right? There's no other option for you. In fact, to the extent, what changed was that पहले आप अपने ऊपर कभी एजुकेशन पे खर्च नहीं करते थे. Pandemic ने हमें वो सिखाया कि कर सकते हो. And that was a big shift. And today people spend on their education. If you ask किसी से भी, आपके पास रहेगा कि कितना मुझे हेल्थ केयर पे स्पेंड करना है, कितना फिटनेस पे करना है, कितना ट्रैवल पे करना है, कितने फोन पे करना है, बट किसी के पास वो लाइन आइटम नहीं होता कि एजुकेशन में कितना खर्च होना चाहिए. यू हैव अ लाइन आइटम फॉर एजुकेशन फॉर योर किड्स, right, but not for yourself. And I think हम इस टाइम पे हैं जहाँ पे कि स्किल्स इतनी तेजी से चेंज हो रहा है that unless you invest in yourself, you will fall behind the curve. And आज की तारीख में आज आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो because the market is changing very very rapidly. And I think that is a good sign that happened post pandemic and people are now willing to learn and willing to upskill. चैलेंज ये है कि बहुत लोगों को लगता है कि ऑनलाइन पढ़ना एक तरीके से OTT या बिंज वॉच करने के बराबर है. बट आप सुबह सुबह उठ करके यू कैन नॉट बिंज वॉच Python 101, you cannot binge watch journalism 101, you cannot binge watch economics 101. Right. So वहाँ पे थोड़ा effort लगता है, but that's the beauty of education and that's how results and outcomes end up coming. IT sector and technology sector सबसे ज़्यादा आगे है curve में to adopt to online learning. Because अगर आप देखोगे technology sector में technology बहुत And what are they learning? So they used to learn, let's say earlier, data science. Today they are all learning AI, and AI has become the buzzword. Almost every sector, everyone is wanting to learn AI.
नॉट द टेक्निकल पार्ट ऑफ द एआई, ये नहीं कि मैं कोड कैसे बनाऊं, मैं कैसे किया द रेगुलर नो हाउ। एग्जैक्टली। तो आप अपने डे टू डे लाइफ में आप एआई को कैसे ला सकते वी हैं? आल्सो डू इट। एग्जैक्टली। लोग बोलते हैं एआई आपका जॉब ले जाएगा। आई थिंक दैट्स नो वन आई ऑफ द डोंट बिलीव इन कन्वर्सेशन। दैट। मुझे लगता है कि एआई आपका जॉब नहीं लेगा, आसान कर देगा। बट जो एआई समझता है वो शायद आपका जॉब ले सकता है, अगर yeah. आप एआई नहीं समझते हो तो। दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम दैट व्हेन कॉर्पोरेट्स नेवर यूज्ड टू से ओके ऑनलाइन पढ़ाया तो इट्स सिंपल, इट्स इजी। मतलब फिजिकल जब तक आप कॉलेज या कहीं इंस्टीट्यूट में नहीं गए तो उसकी उतनी मान्यता ही नहीं है। पीपल यूज्ड टू से दैट, राइट? नहीं, बट आई थिंक जो चेंज हो रहा है आज की तारीख में, जो आप ऑनलाइन प्रोग्राम जा रहे हो, आई मीन आई डोंट नो इफ यू हैव डन अ स्किलिंग प्रोग्राम, बट अभी आप जब ऑनलाइन प्रोग्राम जाते हो, दीज प्रोग्राम्स रिक्वायर यू टू स्पेंड एनीवे बिटवीन 10 से 15 या 20 घंटे वीक के। ना कोई आदमी अगर 10 से 15 घंटे या 20 घंटे वीक में स्पेंड कर रहा है, इट्स नॉट अ जोक। और अगर आपने 500-700 घंटे टाइम स्पेंड किए हैं फॉर लर्निंग समथिंग फॉर 9 to 12 month लॉन्ग, इट इज़ अ सीरियस कमिटमेंट। और आप सिग्नल कर रहे हो रिक्रूटर को। आपको 10 साल हो गए अपग्रेड स्टार्ट किए हुए। हाउ मेनी कोर्सेज हैव यू टेकन योरसेल्फ एट अपग्रेड? नो, आई थिंक लर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, बट एक दो लेसन नहीं, मैंने मल्टीपल लेसन्स लिए हुए, मतलब मल्टीपल कोर्सेज किया हुआ है। When you talk about all these courses, when we talk about reskilling, upskilling, have you seen कि हाँ लोगों की actually salaries के अंदर एक change आना शुरू हुआ है, लोगों के behavior में change आना शुरू हुआ है, people have started becoming more intellectual. Have you seen that change in people around you or anybody who has taken such courses ever? हमने इंडस्ट्री क्या मांगती है, मतलब इंडस्ट्री को आपने देखा है कि हाँ लोग अब अलग तरह के कोर्सेज ले रहे हैं, तो इंडस्ट्री भी उन्हें उसी तरह ही वैल्यू करे, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तो हमें आइडिया नहीं था कि क्या होता है, वेदर रिजल्ट्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमने 6000 बच्चों का सर्वे किया, वर्किंग प्रोफेशनल्स की। 3000 लोगों ने ऑनलाइन कोर्स किया है, 3000 लोगों ने ऑनलाइन कोर्स नहीं किया है। मतलब दे लेफ्ट देयर स्टडीज राइट आफ्टर कॉलेज और पोस्ट ग्रेड, नथिंग आफ्टर दैट। सो जो 3000 लोगों ने ऑनलाइन कोर्स किया, नॉट नेसेसरी कि उन्होंने अपग्रेड से पढ़ाई की हो, कहीं से पढ़ाई की हो। और जो 3000 लोगों ने नहीं किया, उन्होंने कुछ कोर्स नहीं किया। जो 3000 लोगों ने कोई कोर्स नहीं किया, उनका एवरेज इंक्रीमेंट हमने देखा था वो करीबन 11-12% था, which is I think per year, which is roughly in line with 2-3 years back when the salaries were much higherly given. It was in line with the market benchmark. It's still at par with inflation. The market benchmark, correct. People who have done some online program, उसका हमने देखा था कि उनकी एवरेज इंक्रीमेंट करीबन 23 या 24% थी। एंड दिस इज एब्सोल्युटली नो बायस। ये हमारा ना ही अपग्रेड के स्टूडेंट थे, ये पूरी इंडस्ट्री के स्टूडेंट थे। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि हाँ, अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम करते हो तो आपकी सैलरी बढ़ती है। या तो ये है, या तो है कि जो बच्चे ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, जो प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, दे आर मच बेटर एंड देयरफॉर दे रिसीव मच बेटर सैलरी, व्हाटएवर इट इज। द फैक्ट दैट किसी ने they are better in demand, or they are much more in demand. So whatever तरीके से आप देखो ना, समटाइम ये एजुकेशन एक तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग पैरामीटर होता है कि अगर आप इतना एफर्ट डालते हो तो रिक्रूटर आपको उसके लिए वैल्यू करता है। एंड दैट इज व्हाई यू सॉ 2x जंप इन द सैलरी। मैं आपको स्टैटिस्टिक बताता हूँ कि आज की तारीख पे इंडिया में 18 से 24 साल के एज पे करीबन अबाउट 150 मिलियन, 15 करोड़ लोग हैं 18 से 24 साल के बीच में। उन 15 करोड़ लोगों में से आज की तारीख में सिर्फ 4 करोड़ लोग हायर एजुकेशन में पढ़े हैं। इसका मतलब कि 11 करोड़ लोगों ने हायर एजुकेशन किया ही नहीं। दे हैव नॉट एंटर्ड एजुकेशन बिकॉज हमारे हायर स्कूल सिस्टम बहुत ड्रॉप आउट होता है। तो इंडिया इज वन सच कंट्री जहाँ पे कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कि कितने बच्चे हायर एजुकेशन में होने चाहिए वर्सेस कितने हैं is only 35 to 40%. काफी बड़ा गैप है। It's a huge gap, and today China is at about 60-70%, US is at 80%, Europe are at 80%. And where are we? We are about 35%. That's not good. So for every 2 of us, right, there are 4 people around us who have not gone through higher education. And that is what India needs to invest in. Unfortunately, because of the population, इंडिया में जो हायर एजुकेशन की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी वो मोस्टली ऑनलाइन में ही होगी वर्सेस ऑफलाइन, बिकॉज हम इतने सारे इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक अराउंड 12 to 14% सालाना महंगाई बढ़ रही है in education sector. That's a lot. Not everybody can afford it. Correct. Right now we are sitting in Delhi NCR. यहाँ पे एक average school, I'm not talking about the poshest, or I'm not even talking about good schools. Like मतलब so called poshest पे तो मैं जा ही नहीं रही हूँ। एक एवरेज स्कूल की मंथली फीस वुड बी अराउंड 15 to 18,000 रुपीज पर मंथ। एवरेज आई एम टॉकिंग अबाउट। मैंने 5 रुपए दिए थे। 18,000 रुपए महीने के एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च बहुत लोग दे ही नहीं पाते हैं। और हर साल तब भी 12% हर साल वो 12% और बढ़ रहा है। और पता है क्यों बढ़ रहा है? और जबकि इन्फ्लेशन अलग बढ़ रही है,
एजुकेशन इन्फ्लेशन अलग बढ़ रही है, Yeah. लोगों की तनख्वाहें उस हिसाब से नहीं बढ़ रही हैं, करेक्ट। तो ड्रॉप आउट का तो रीजन बहुत जायज है। एंड आज की तारीख में बहुत सारे बच्चे जो रूरल पार्ट या स्मॉल टाउन से आते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू स्टार्ट वर्किंग। मैं रूरल पे अभी जा भी नहीं रही, मैं हाँ। तो दिल्ली एनसीआर की Yeah, बात yeah, कर रही हूँ। yeah. और वो लोग जाते ही नहीं है, वो ड्रॉप ऑफ कर देते हैं, बोलते हैं कि हम कर लेंगे, बाद में डिस्टेंस से पढ़ाई कर लेंगे, बाद में कुछ कर लेंगे, बिकॉज सोसाइटी डज नॉट गिव देम एन ऑप्शन but to take up a job, and therefore they just focus on the job, and therefore lot of people, 1/3 people are only going through higher education, which means that 2/3 are not even entering into higher education, and that is one big problem area जो हमें as a देश को हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को ये 30-35% को कैसे ब्रिज करेंगे, उसके लिए बहुत काम है, एंड गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन दैट एरिया। एंड हमारा ऑब्जेक्टिव भी वही है, अपग्रेड की ऑब्जेक्टिव वही थे कि कैसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना सके ताकि हम उस प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत सारे लोगों को हायर एजुकेशन के थ्रू पढ़ा सके ओवरऑल, एंड दोज आर द वर्क दैट इज नीडेड टुडे, एंड दैट्स व्हाई sometimes when you are in education sector आपको लगता है कि yeah you are building a business whether it is profitable growing I mean so on and so forth, but at the same time आपका बहुत ज़्यादा impact भी होता है, and वो impact is more important for a lot of founders because that's what drives us on a day-to-day basis. You know, we have talked about education, but let's just talk about entrepreneurship. You became an entrepreneur 10 years back when you were like really young. आपने कहा कि आपको business की उतनी knowledge नहीं थी. You just entered into the world of entrepreneurship, but yes, you had knowledge of the education sector. So what was the biggest challenge जो आपको लगा कि oh, I was not aware of it. ये तो आ गया एकदम से, and you know somehow I have to do this. आज भी वो लगता है क्या? So कुछ भी चीज़ मतलब आपको हर दिन आप उठते हैं आपको लगता है कि a new challenge, yes. a new challenge that comes up, and I think मैं दो चीज़ बोलूँगा इसके बारे में चाहत कि I think entrepreneurial journey बहुत हद तक बहुत लोनली जर्नी है। बहुत सारी चीज़ें आप सबसे बात नहीं कर सकते हो, एंड therefore you have to just live through it and experience that. मगर अगर आपको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है, आगे बढ़ना है, देन जो मैंने आपको पहला कहा था कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, एंड दैट विल पावर अच्छे दिनों पे स्ट्रांग होना बहुत आसान होता है, खराब दिनों पे उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इसीलिए जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो आपको ये पूछना ज़रूरी है अपने से कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। तो वो जो मिशन या विजन या मकसद जो आपने कहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो खराब दिनों में वो मकसद या वो मिशन या वो विजन आपको याद दिलाता है कि आपको ये चीज़ों पे आपको सुबह उठ करके ऑफिस जाना है ही। तो मैंने बोला देखो प्लान ए है कि अपग्रेड विल बी अ $1 बिलियन कंपनी, व्हिच वाज अर्लियर द न्यू थिंग, यूनिकॉर्न आ गए थे। मैंने बोला अगर $1 बिलियन नहीं होगी तो $900 मिलियन की होगी। तो जब आप कोई एंटरप्रेन्योर जर्नी में घुसते हो तो आप प्लान बी के साथ घुस ही नहीं सकते हो। अगर आपके पास प्लान बी है, if you can't reach the moon at least land at the stars, तो अगर आपके पास प्लान बी नहीं है एग्जैक्टली तब आप हमेशा प्लान ए को सक्सीड करने की कोशिश करोगे। अगर आपके पास प्लान बी है तो आप हमेशा वापस भागने की कोशिश you have something to look back to. Exactly. So आप you should not have an exit option when you're starting an entrepreneurial journey. I think मैं कुछ ज़्यादा सोच के डिसीजन लेता हूँ। I think ज़्यादा सोच करके एनालिसिस पैरालिसिस का कोई फ़ायदा नहीं है। आई गेस आपने इतना देखा है दुनिया ताकि आपको पता है कि ये डिसीजन 100 में से 10 ही बार गलत होगी ना, बट अगर 90% सही है तो बहुत अच्छी बात है। 90% को 99% ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई थिंक ज़्यादा सोचना, ज़्यादा अपने बारे में अपने उसी टॉपिक के बारे में सोचते रहना इज़ नॉट द बेस्ट ट्रेड। आई थिंक मैंने ये चीज़ सीखा है कि यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी बाय बीइंग ब्रेव than by being brilliant. So you have to take the brave calls and not take the best call all the time. So 10 साल हो गए हमने जो शुरू किया था बहुत हद तक हम बूटस्ट्रैप थे, हमने कोई एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन। What was the initial capital? नहीं, I think initially हमने मतलब पहले आप पकड़ लो 5-6 सालों में we would have spent about maximum about 100 crores. The max that we spent about for the first 5-6 years was about 100 crores. उसके बाद हमने करीबन $300 मिलियन रेज किया, which is roughly about 2000 करोड़ हमने ओवरऑल रेज किया है। And now what is the Today market cap? We are valued at about $2 billion, give or take about 16,000 करोड़ depending on dollar किधर पे जा रहा है। Right. So we are valued at about 15-16-17,000 करोड़ in terms of value. Overall 4,000 लोग काम कर रहे हैं अपग्रेड पे across different functions, different locations. We have trained about 10 million learners, about 1 करोड़ लोग हमारे प्रोग्राम के थ्रू जा चुके हैं।
And 80% of them are in India, 20% are international. 80% of our business is consumer, 20% is B2B and enterprise. And I think अभी हम इस stage पे है where we are now looking at ये platform तो बना है, how do we scale it up, grow it profitably and Probably sustainably. thinking of an IPO. It is definitely, it's part of the journey. It's on the cards, but it's not on the cards, yeah. right now. It will still take us about 18-24 months away for us, मगर it's a step by step process and I think step by step हर दिन एक एक step लेकर के हमें आगे बढ़ना है. जब competition बहुत तेज होता है तो लोग success देख करके बोलते हैं कि आप ये करो, but as an entrepreneur आप दूसरों की बात सुन करके दूसरों के लिए तो business नहीं बना रहे हो, and आपका खुद की business की कोई point of view है, and I think वो उस चीज पे focus करना was a tough thing, but that's what we did. That look, no matter all the noise around, focus on what you're trying to build, provide outcomes to your learners. See, because अगर आप education पे outcome नहीं करोगे ना, तो education gets very difficult to sell. Right. Because education या तो people देखते हैं insurance product की तरह, या तो mutual fund की तरह. Insurance क्यों? Because लोग बोलते हैं कि कुछ खराब हो गया तो education है, degree है, कुछ बच जाएगा, मुझे job से नहीं निकालेंगे. म्यूचुअल फंड बिकॉज बोलते हैं 100 रुपये डाला है तो 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिल जाएगा या 500 रुपये का इंक्रीमेंट मिल जाएगा. म्यूचुअल फंड बेचना या डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत आसान है वर्सेस इंश्योरेंस. सो एजुकेशन शुड बी सीन मोर एज अ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट देन एज एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट. बट अगर आप आउटकम नहीं देते हो तो लोग उसे इंश्योरेंस देखते हैं, अगर आप आउटकम देते हो तब लोग उसे म्यूचुअल फंड देखते हैं. आई थिंक व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन कि अगर हमने 10 मिलियन या 1 करोड़ बच्चों की लाइफ में इम्पैक्ट किया है, क्या मैं वो 1 करोड़ 10 करोड़ पे ले जा सकता हूँ? अगर मैं वो 10 करोड़ पे ले जा सकता हूँ तो मैंने कम से कम 50 से 60 करोड़ लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया है. सो आई थिंक आवर फोकस इज हाउ डू आई टेक दिस 1 करोड़ और 10 मिलियन पीपल टू अबाउट 100 मिलियन पीपल गेटिंग इम्पैक्टेड ग्लोबली. क्योंकि एजुकेशन पे अगर आप वो 10 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हो तो आपको पता है कि हर आदमी के साथ में 4 या 5 फैमिली मेंबर जुड़े हुए होते हैं, राइट. एंड आप 40-50 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हो. आई थिंक द इम्पैक्ट इज अ बिगर ड्राइवर फॉर अस. And I think IPO is a station that comes in the journey. So amongst the multiple stations, you have an IPO as a station. But in entrepreneurial journey, at least ये होता है कि आपका कोई end station नहीं होता है. Because the end station continues going on. You keep on going. It's a journey, and you're not here for a destination. But I think impact number, जब मैंने शुरू किया था तब 1 करोड़ बहुत बड़ा नंबर था. अब आज 1 करोड़ बैठ के 10 करोड़ बहुत बड़ा दिखता है. But I think when we hit 10 crore, perhaps we'll be looking at 100 crores over a period of time. यू नो एजुकेशन जो सेक्टर है हमारी कंट्री के अंदर, अगेन इसके बहुत सारे प्लस भी हैं, माइनस भी हैं. काम चल रहा है, बट पर्सनली आई वुड से कि काम बहुत धीमी गति से चल रहा है. या फिर हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, लोग इतने ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतनी है कि वो कितना भी काम करो धीमा ही दिखेगा अब एज अ थर्ड पर्सन. करेक्ट. आई थिंक द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन द कंट्री, मतलब आई थिंक प्राइमरी एजुकेशन फाउंडेशन बनाता है. And I think वहाँ प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत जगह पे क्वालिटी इम्प्रूव होनी बहुत ज़रूरी है. अगर आप देखोगे पहले हमारे यहाँ मिड डे मील स्कीम आया था. मिड डे मील से ये हुआ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर रहे. उन्होंने बोला घर पे खाना नहीं तो कम से कम यहाँ पे तो खाना आपको मिल जाएगा. Then you got सर्व शिक्षा अभियान, so on and so forth. I think all these initiatives helped in getting a lot many more people in the education space. But today अगर आप जाके बोलोगे कि क्वालिटी कैसी है, quality is still questionable. I think if you ask me today, and I personally feel that primary education should be strongly driven by the government, because I think government का involvement वहाँ बहुत ज़रूरी है, because उनके पास distribution है, reach है, and वहाँ पे quality fix करना is one of the most critical thing. और दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा, जब बच्चे कॉलेज से निकल रहे हैं, then more than the degrees they should get the skills, because today people still value degree. अगर आपके पास डिग्री है बहुत valuable है, अगर आपने उसको लैमिनेट कर दिया और भी वैल्यूएबल हो गई, अगर आपने उसको लेदर बाउंड कर दिया तो और ज्यादा वैल्यूएबल है, उसके ऊपर एक गोल्डन बॉर्डर लगा दी तो और ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है. बट व्हेन यू कम टू ग्राउंड जीरो एंड यू एक्चुअली नो नथिंग, माइंड, डू यू आल्सो रीड? आई डू रीड अ लॉट. या What do you read? Like, what are your genres of reading? What do you love reading? I mean, I have a very varied genre. I read a lot about entrepreneurship. I read a lot about business. I'm currently 2 or 3 books if you would like to recommend somebody. I think on entrepreneurship, 2 books that I like. There's a book on Hard Things About Hard Things, which is about making a better, being an entrepreneur, how brutal it is. ताकि लोग खाली ग्लैमर के कारण entrepreneurship पे नहीं आए, गलत चीज़ों पे देख के आए.
And एक और किताब है 0 to 1, which I've really liked. It's written by Peter Thiel. Right, yeah. It's a book about new ideas and new initiative. Hmm. My co-founder Ronnie Screwvala has Yeah. written two very interesting books, Skill It to Kill It and Dream with Your Eyes Open. So I think these are good books for on the entrepreneurship front. I'm reading one very interesting book right now, which is on theory of everything. Which tells what are the various theories that define the world. So I'm a avid reader, but मेरी philosophy क्या है? आपको जब सैलरी अपने बारे में एज अ फाउंडर अपनी सैलरी सोचनी है, देन यू टू थिंक अबाउट अगर आप नहीं कर रहे होते कोई और कर रहा होता तो क्या, तो आप उसको कितनी सैलरी देते, व्हाट इज द मार्केट रेट ऑफ द ऑफ दिस पर्टिकुलर रोल, एंड दैट मार्केट रेट ऑफ द रोल शुड डिफाइन व्हाट द सैलरी शुड बी. अदरवाइज एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप कुछ भी सैलरी डाल सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, यू हैव व्हाटएवर, बट you have to be honest about the fact that at some point of time you are an employee, at some point of time you are a founder, at some point of time you are a shareholder. So basically you're betting really high on AI. 100%. And you think that AI can actually be the game changer? AI is Already a game changer. Is already a game changer, but it's a phenomena that India cannot afford to miss. There are certain things that India cannot miss, and I think AI is one such thing. Is one such bus. कि AI जैसे IT में हुआ था, IT created an entire middle class. I think AI will ensure that the middle class expands and balloons and becomes much bigger, because AI skills will mean that a lot of countries will look at India as the hub for AI talent. How much minimum money is required to learn AI? मतलब लोगों को लगता है कि AI sounds very fancy, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए इसे सीखने के लिए. नहीं, मुझे it can start from as low as 500 rupees. We are launching a program with Microsoft which will be priced at 500 rupees only. तो आप 500 रुपए में भी बेसिक सीख सकते हो, बट ऑफ कोर्स इट इज नॉट मेंट फॉर गेटिंग अ जॉब और क्रैकिंग एन इंटरव्यू, बट एटलीस्ट यू विल बी प्रोडक्टिव एंड नॉट स्टे बिहाइंड द कर्व. But अगर if you want to stay ahead of the curve, then how much money do you require? See, I think because there are some misconceptions about AI. No, agreed, completely agree. I think अगर आप 500 रुपए करोगे तो you will get an awareness level. If you get to a 10,000 rupees program or 15,000 rupees program, you will be able to apply something at, let's say, some program which are at 50,000 or 1 lakh and above. You can really go deep and become an AI engineer also. And if you want to do thesis and if you want to write research paper, of course there is no limit to it. Right. But anywhere that you spend for a course जहाँ पे आप कम से कम 6 से 12 महीने spend करते हो, the pricing could be anything, but 6 से 12 महीने अगर आपने dedicatedly spend किया है, you will be able to make a transition in an industry where your skills will be highly valued and you can stay ahead of curve. This was such an insightful session, and the conversations would keep going on and on and on. And we would actually ask our viewers that, learning is something that keeps on going till your last breath. But the first step, you only have to take it. Nobody else will help you. You remember that thing, God help those who help themselves. So you have to do it all by yourself. And for the rest, he's there. No, absolutely. Thank you very much for having me here today. Thank you so Thanks. much.